Welcome everybody. This is our fifth video in question bank slash numerical series for chapter magnetic effects of current for class 10. Before this, we have made 4 videos in this series and covered around 47 questions. So I hope you have watched those videos and liked the content. And if you found them useful, then please consider sharing this video, liking this video and subscribing to our channel, because more you share, more you like and more you subscribe, more the YouTube algorithm detects this video and more it recommends to other people, so other people can also get benefit from this. So it is requested to you, please do share and subscribe and also like our videos. And if you have not watched our other videos, there are multiple videos related to class 10 physics on our channel. Chapter wise videos are available there, so you can check it out. Our YouTube channel, name of channel is Point Basics and playlist is class 10 physics, so you can go and check out there. There are multiple theories videos for each chapter and multiple question bank slash numerical series for each chapter, and we will continue to do the same. So it is requested to you. Please do share your feedback and share these videos also with your friends, your classmates, and subscribe also. With this, let's start today's video. Today we will start second exercise with question number 1. So in starting, we have some multiple choice question. So first we will cover those and then we will move to our normal theoretical questions. So question number first, choose the correct statement from the following regarding magnetic field lines. हमें magnetic field lines के बारे में incorrect statement बताना है. So direction of magnetic field at a point taken to be the direction in which north pole of the magnet compass points. Second है magnetic field lines are closed curve. Third है magnetic field lines are parallel and equidistant. They represent non-zero field strength. And next, relative strength of magnetic field shown by degree of closeness of the magnetic field. तो यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है, उसका सिर्फ एक पार्ट रॉन्ग है, दैट इज जो स्टेटमेंट है दैट इज सी. और इसमें क्या है, सिर्फ क्या रॉन्ग है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस. वो पैरेलल तो होती हैं, अगर आप किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन निकालोगे तो वो आपको सभी पैरेलल ही दिखाई देंगे, बट वो इक्विडिस्टेंस नहीं होगी, बिकॉज जो उनके बीच का डिस्टेंस होता है उससे आपको फील्ड स्ट्रेंथ का पता लगता है. So they are not equidistant. एंड जो लास्ट पॉइंट है इसका, दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ, ये भी रॉन्ग है. सो ये दोनों पॉइंट रॉन्ग है, दैट्स व्हाई इसका आंसर होगा सी, बिकॉज हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट का पता करना. नाउ इफ द key in the arrangement is taken out, the circuit is made of open, the magnetic field lines are ABCD drawn over a horizontal plane ABCD, the lines are. So इसका हमारा सर्किट मिसिंग है, बट इसका जो बेसिक सर्किट था वो लाइक दिस, कि आपके पास एक कंडक्टर है, लेट मी ड्रा इट प्रॉपर वे. ये आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से आप एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगाते हो. यहाँ पे आपने एक बैटरी लगा दी और एक रेजिस्टेंस लगा दिया करंट कंट्रोल करने के लिए, और आपने सर्किट को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक की लगी. नाउ ये बोला गया है इफ द की इन द अरेंजमेंट इज टेकन आउट, मीन्स पहले की लगी हुई थी, जब की लगी हुई थी तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे होगी, यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी. तो अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो अब आप यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या लगाओगे, राइट हैंड थंब रूल. तो उसमें आपका थंब नीचे की तरफ होगा, ग्राउंड की तरफ,
तो आपकी फिंगर्स आपको ऊपर से देखने पे कैसे रोटेट करते हुए दिखाई देंगी, क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए दिखाई देंगी। तो यहाँ पे जो फील्ड है वो ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। ओके, बेटर वे, ये वायर के पीछे से यहाँ से आगे आएंगे, तो दिस दैट्स हाउ क्लॉकवाइज, तो फील्ड ऐसे रोटेट करेगी। अब ये बोला गया है कि आप इस की को हटा देते हो, तो जैसे ही आप इस की को हटाओगे तो क्या होगा, कनेक्शन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जैसे ही कनेक्शन ओपन हो जाता है तो जो फील्ड लाइन्स है यहाँ से फील्ड बिल्कुल ही गायब हो जाएगी, तो कोई फील्ड लाइन्स नहीं रहेंगी। और जैसे फिर आप फिर से की लगा देते हो, वापस आपने फिर से की लगा दी, तो फिर से फील्ड लाइन्स आ जाएंगी, बिकॉज फिर से करंट फ्लो करने लगेगा, और ये फिर से आपकी फील्ड लाइन एज इट इज सेम कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपके पास आ जाएंगे। सो जो इसका आंसर है दैट इज ए कंसेंट्रिक सर्कल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3 is a circular loop placed in a plane perpendicular to plane of paper carries a current when the key is on. The current as seen from point A and B in the plane of paper and the axis of the coil is anti-clockwise and clockwise respectively. The magnetic field lines point from B to A. The north pole of the resultant magnetic field. सो यहाँ पे क्या है, आपके पास एक कोयल है और कोयल के अंदर क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। अब जो कोयल है वो प्लेन परपेंडिकुलर टू क्या है, पेपर है। मींस अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ पे कोयल ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने एक सर्कुलर कोयल ड्रॉ कर दी, अभी ये आपको स्क्रीन के प्लेन में दिखाई दे रही है। मींस इस कोयल का यहाँ पे लेफ्ट है, इस कोयल का यहाँ पे राइट है, और वही लेफ्ट राइट स्क्रीन का। बट जो यहाँ पे वो रखा गया है वो प्लेन परपेंडिकुलर टू क्या है, सरफेस है, मींस इसके परपेंडिकुलर है। तो उस सिनेरियो में आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि एक ऐसा सर्कल है जिसकी ये साइड आपकी तरफ है और ये साइड स्क्रीन के बैकवर्ड है, पीछे की तरफ। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, लेट मी रब दिस। तो ये सर्कल कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे ये हो जाएगी लेफ्ट साइड, ये हो जाएगी राइट साइड, और ये जो इसकी साइड्स हैं ये स्क्रीन के बैक साइड को टच करती है और ये स्क्रीन के फ्रंट साइड को ये आपकी तरफ टच करती है। तो इस कॉइल को ऐसे रखा गया। अब नाउ यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट ए और एक है दूसरी साइड राइट साइड में इसके पॉइंट बी। नाउ जब ए पॉइंट से देखा जाता है तो करंट एंटी क्लॉक दिखता है। तो मीन्स ए पॉइंट से जब आप देख रहे होंगे तो करंट आपको एंटी क्लॉक दिखाई देगा। तो ए पॉइंट की तरफ से करंट यहां से ऊपर जाएगा, ये फॉरवर्ड साइड है, वो बैकवर्ड साइड है, वो पीछे की साइड, और यहां से नीचे आएगा। और सेम चीज को अगर आप बी से देख रहे हो तो आपको क्या दिखाई देगा, क्लॉकवाइज। तो बी से आपको ये क्लॉकवाइज दिख रहा है और ए से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कि कहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, हमारे पास एक बेसिक शॉर्टकट होता है दैट हमारे पास दो ही पोल बन सकते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो आपको जस्ट इनको रोटेट करवाना होता है। आप नॉर्थ को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा सकते हो, साउथ को ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करवा सकते हो। मीन जहां भी क्लॉकवाइज रोटेशन है वहां पे आपको साउथ पोल दिखेगा। तो बी की तरफ क्लॉकवाइज रोटेशन है तो यहाँ पे क्या बनेगा, साउथ पोल, और उसका अपोजिट यहाँ पे बनेगा नॉर्थ पोल, बिकॉज नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट में हमेशा एक साथ बनते हैं। सो क्वेश्चन ये था
दैट नॉर्थ पोल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेट इज ऑन द फेस। नॉर्थ पोल कहाँ पे होगा? तो नॉर्थ पोल होगा ए फेस के ऊपर और बी फेस के ऊपर साउथ पोल। और इसके जो अदर ऑप्शंस हैं वो वैलिड ही नहीं होंगे, बिकॉज चाहे आप करंट को इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो दिस इज द आंसर। सिर्फ चेंजिंग करंट होगा तब आपके पोल स्विच हो सकते हैं, बट वो अभी आपके सिलेबस से आउट है, सिलेबस से बाहर है, तो अभी आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि अभी क्या है, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है मींस कांस्टेंट करंट से क्या आती है? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसका मीनिंग है कि आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों फिक्स है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों फिक्स है, और उसमें आपको आप इजिली यूजिंग दिस शॉर्टकट आप निकाल सकते हो कि कहाँ पे साउथ बनेगा कहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। तो विद दिस क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। So, for a current in long solenoid, north and south pole are created at two ends. Among the following statements, the incorrect statement. So, हम एक सोलेनोइड बना लेते हैं। ये सपोज हमारे पास सोलेनोइड है, यहाँ से करंट इनपुट है, यहाँ से करंट आउटपुट है, और अभी जस्ट हम रेफरेंस के लिए इसको नॉर्थ पोल बोल देते हैं, यहाँ पे साउथ पोल बोल देते हैं। और अगर हमारी ये फील्ड्स हैं तो इसमें जो अगर हम फील्ड लाइंस बनाए तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनेगी। एक हम ऊपर बना लेते हैं, एक नीचे बना लेते हैं, और फील्ड लाइन बाहर नॉर्थ से साउथ जाती है तो ये ऐसे, और अंदर के लिए साउथ टू नॉर्थ। और ये डाइवर्ज क्यों करती है, कन्वर्ज क्यों करती है, इसका रीजन हम ऑलरेडी हमारी प्रीवियस जो हमारी स्टार्टिंग वीडियोस हैं उसमें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते। सो ये हमारा बेसिक सेटअप हो गया। अब इसके बेसिस पे ऑप्शन हम देखते हैं। द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस which indicates the magnetic field is the same at all points inside the solenoid. Second point है, the strong magnetic field produced inside the solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. Third point है, the pattern of magnetic field associated with the solenoid is different from the pattern of magnetic field around the bar magnet. North and south pole exchanges position when the direction of the current flow solenoid is reversed. तो हम तीनों पॉइंट को एक सभी चार जो हमारे 4 ऑप्शंस हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको ये पता रहे कि अगर वो सही है तो सही क्यों है और अगर गलत है तो गलत क्यों। सो फर्स्ट पॉइंट इज द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस व्हिच इंडिकेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इज सेम अक्रॉस ऑल द पॉइंट्स ऑफ सोलेनोइड। तो जो आपका ये पॉइंट नंबर ए है ये वैलिड है एंड ट्रू है, प्रोवाइडेड इसके लिए कंडीशन होती है कि लॉन्ग सोलेनोइड होनी चाहिए, बहुत ही लंबी सोलेनोइड हो, और जो यहाँ पे गिवन है स्टार्टिंग में ये देखिए यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड मींस अब जो आपकी फील्ड है जब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनोइड के अंदर से क्रॉस करती है तो वहां पे सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के साथ ऐड हो जाती है। तो जब वो ऐड हो जाती है तो पूरी सोलेनोइड के अंदर सिर्फ अगर आप ये एग्जिट और एंट्री वाला रीजन थोड़ा सा छोड़ दे तो पूरी सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहती है और इक्वल रहती है। तो इसको ट्रू करने के लिए हम क्या मानते हैं कि सोलेनोइड बहुत लंबी है, इसलिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट उसके बहुत ही स्मॉल पोर्शन है सोलेनोइड का, दैट्स व्हाई ये ट्रू है कि मैग्नेटिक सोलेनोइड के अंदर कोई भी आप पॉइंट चूज करोगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है, इक्वल रहती है और मैक्सिमम होती है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है जो हमारा सेकंड पॉइंट गिवन है कि इसके अंदर कोई अगर हम मटेरियल प्लेस कर देते हैं, जैसे इसके अंदर अगर हमने आयरन प्लेस कर दिया, आयरन का कोई मटेरियल यहाँ पे रख दिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आयरन से भी पास होंगी, और जब ये उस आयरन से पास होगी तो ये उस आयरन के जो एटम्स हैं उनको इस वे में अलाइन कर देंगे कि वो भी क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक बन जाएगा। सो फिर जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो ये आयरन भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा।
और इन रियलिटी परमानेंट मैग्नेट ऐसे ही बनाए जाते हैं कि आपको मैग्नेट की जो शेप चाहिए उस शेप का एक सॉफ्ट आयरन का बना लिया जाता है, स्ट्रक्चर बना लिया जाता है। फिर उस स्ट्रक्चर को सोलेनोइड के अंदर रखा जाता है और फिर सोलेनोइड से करंट फ्लो करवाया जाता है बहुत हाई इंटेंसिटी का। जब वो करंट फ्लो करता है तो इस आयरन के जो एटम्स हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर जाते हैं और फिर इसको बाहर निकाल लिया जाता है। और जैसे आप इसको बाहर निकालते हो तो उस सिनेरियो में ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ऐसे परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं। तो सेकंड भी ट्रू है। थर्ड पे आते हैं, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद सोलेनोइड इज डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट। तो हमने बार मैग्नेट के लिए भी फील्ड डिनोट की है ऑलरेडी, कंपैरिजन हमने किया हुआ है दोनों का हमारी प्रीवियस वीडियो में, और दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड एक्जैक्टली सेम, दोनों के लिए फील्ड लाइन है जो एक जैसी ही दिखती है। बस सोलेनोइड के केस में हमें कुछ एडवांटेज होते हैं कि हम इसकी फील्ड को कम ज्यादा कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बार मैग्नेट में ऐसा नहीं होता, बट फील्ड दोनों की एक जैसी होती है। तो ये आपका पॉइंट क्या है, रोंग। एंड फोर्थ पॉइंट, नॉर्थ और पोल साउथ पोल है जो डिफर करेंगे अगर हम करंट को रिवर्स कर देते हैं। तो यस, अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो तो नॉर्थ साउथ पोल एक्सचेंज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मेंशन है कि एक फील्ड एग्जिस्ट करती है प्लेन ऑफ पेपर में एग्जिस्ट करती है और कहां से, लेफ्ट टू राइट एग्जिस्ट करती है। मींस तो हम क्या करते हैं, पहले हम डायरेक्शंस बना लेते हैं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन करने होंगे तो आप हमेशा डायरेक्शंस बना लीजिए सो दैट आपको एक्स वाई जेड अंडरस्टैंड करना इजी रहे। सो हमने जो आपके पेपर की ऊपर वाली डायरेक्शन है, स्क्रीन के ऊपर वाली डायरेक्शन है, हमने इसको वाई डायरेक्शन बोल दिया, हॉरिजॉन्टल को हमने एक्स बोल दिया, और जो स्क्रीन से बाहर की तरफ आएगी डायरेक्शन उसको हमने जेड से डिनोट कर दिया। नाउ ये बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पे पॉइंट कर रही है, लेफ्ट टू राइट। सो जो बी है यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट है। और लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होगी, माइनस एक्स, राइट में कौन सी डायरेक्शन होगी, प्लस एक्स। तो बी की डायरेक्शन है प्लस एक्स डायरेक्शन है आपके पास। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मूव करते हैं कैसे, यहाँ पे फिगर नहीं है, बट हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऊपर से टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब दोनों वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मूवमेंट किसमें, माइनस वाई डायरेक्शन में, क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है। और जो प्रोटॉन है उसकी भी मूवमेंट माइनस वाई डायरेक्शन में। ना अभी आपको ये पता है कि जो करंट होता है वो क्या होता है, करंट किसकी वजह से आता है, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से आता है। अब वो कौन सा चार्ज होता है, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और जो आपका नॉर्मल करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइनस वाई में जा रहे थे तो करंट ऊपर की तरफ जाएगा, यानी प्लस वाई में जाएगा। जबकि अगर प्रोटॉन की बात करें हम तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन चलेंगे उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे प्रोटॉन के केस में माइनस वाई ही रहे। एक बार आपको इसका रिफ्रेशर दे देते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास एक बैटरी और उसमें एक सर्किट लगा हुआ है। ये बैटरी है, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। लेट मी मेक इट स्लाइटली, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू R हो गई, पोटेंशियल की वैल्यू V होगी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो जब हम करंट डिनोट करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, और पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, यहाँ पे प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो करंट की डायरेक्शन वही होगी जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन मीन्स प्रोटॉन की डायरेक्शन, तो प्रोटॉन की और करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। बट अगर इलेक्ट्रॉन के केस में देखें तो इलेक्ट्रॉन निकलता है नेगेटिव वाले रीजन से, माइनस वाले रीजन से, तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फ्लो करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, और जो आपका करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के तो अपोजिट होती है, बट प्रोटॉन के फ्लो के सिमिलर होती है। दैट्स वाई जब इलेक्ट्रॉन माइनस वाई में जा रहा है तो उसकी वजह से करंट किस में जा रहा है, प्लस वाई में। और अगर हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन माइनस वाई में जा रहा है तो करंट भी माइनस वाई में जा रहा है। और ये दोनों अलग अलग केसेस है, मीन्स ये दोनों एक सर्किट में नहीं हो रहे, ये दो अलग अलग केसेस है, हम इन दोनों को एक साथ सोल्व कर रहे हैं। मीन्स आप ये मत समझिएगा कि ये भी उसी सर्किट का पार्ट है और ये भी उसी सर्किट का पार्ट है, दोनों अलग अलग सर्किट का पार्ट है, हम इनको सोल्व एक साथ कर रहे हैं जस्ट। सो हमारे पास करंट आ गया, करंट की डायरेक्शन आ गई, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हम चलते हैं फोर्स की डायरेक्शन में। तो फोर्स आप कैसे निकाल सकते हो? अगर आपको फोर्स निकालना है तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें आपका जो थंब होता है, थंब फोर्स को डिनोट करता है। और पहले आप क्या कीजिए, अपने थंब को, फर्स्ट फिंगर और जो आपकी मिडिल फिंगर है, तीनों को एक दूसरे से परपेंडिकुलर कर लीजिए। सो ऐसे आपका थंब पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ पे आपकी फर्स्ट फिंगर होगी और ऐसे परपेंडिकुलर आपकी मिडिल फिंगर होगी। तो जो आपका थंब है ये फोर्स को डिनोट करता है, जो आपकी फिंगर है ये फील्ड को डिनोट करती है, फर्स्ट फिंगर, और जो आपकी मिडिल फिंगर है ये डिनोट करती है करंट को, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर आप इसका यूज करें और आपके पास किस किस की डायरेक्शन है, फील्ड की और करंट की, तो फील्ड आपकी लेफ्ट टू राइट है यानी कि एक्स डायरेक्शन में, तो आपकी फर्स्ट फिंगर एक्स डायरेक्शन की तरफ यानी कि स्क्रीन के लेफ्ट टू राइट की तरफ पॉइंट करनी चाहिए। नाउ जो करंट है वो वाई डायरेक्शन में है, तो करंट वाई डायरेक्शन में किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए करंट वाई डायरेक्शन में है, तो आपकी मिडल फिंगर ऊपर की तरफ पॉइंट करनी चाहिए। तो आप ये पाओगे कि जो आपका थंब है वो स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है यानी कि माइनस जेड डायरेक्शन। सो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। और अगर हम प्रोटॉन के लिए निकालते हैं तो सेम सिनेरियो, जो आपकी फील्ड है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है, और जो अभी आपका करंट है वो अभी ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ जा रहा है यानी कि ग्राउंड की तरफ जा रहा है, तो प्रोटॉन पे आप निकाल पाओगे कि डायरेक्शन हो जाएगी प्लस जेड। तो ये तो हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लिया। अब दूसरा हम जो न्यूमेरिकल मेथड है उससे कैलकुलेट करते हैं। उस केसेस में आप कैसे कर सकते हो कि जो फोर्स होता है, जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड फीट। और लेंथ के केस में हमें, हमारे पास लेंथ की नॉर्मल डायरेक्शन नहीं होती, तो हम लेंथ की जगह पे क्या ले लेते हैं, करंट की डायरेक्शन ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे आई की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन से डिसाइड करेंगे करंट की डायरेक्शन क्या होगी। और डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हम साइकिल बनाते हैं एक्स वाई जेड की, और यहाँ पे अगर आप क्लॉक वाइज चलते हो तो ये पॉजिटिव मानी जाती है, एंटी क्लॉक वाइज चलोगे तो आप इसको नेगेटिव मानोगे। तो इलेक्ट्रॉन के केस में करंट है वाई डायरेक्शन में एंड फील्ड है एक्स डायरेक्शन में। मींस आपको y से x पे जाना है, अगर आपको y से x पे जाना है तो आपको रिवर्स पाथ लेना पड़ेगा। अब y से x पे जाओगे तो मिलेगा तो आपको z, बट रिवर्स पाथ ले तो माइनस z मिलेगा। तो ऐसे आ जाती है, इलेक्ट्रॉन के केस में डायरेक्शन आएगी माइनस z, और अगर प्रोटॉन के केस में लें, हमारे पास करंट है माइनस वाई डायरेक्शन में इंटू एक्स डायरेक्शन फील्ड की, माइनस हम बाहर ले लेंगे, y क्रॉस x, और y क्रॉस x से आपको माइनस z मिला था, और माइनस ऑफ माइनस जेड, जेड डायरेक्शन। तो ऐसे आप निकाल सकते हो दोनों वे से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए कि जो लगने वाली डायरेक्शन होगी फोर्स की वो कहां पे। सो इसका ऑप्शन होगा सी, फोर्सेस
pointing into plane of paper and out of plane of paper. मीन्स या एक फोर्स तो स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा और एक फोर्स स्क्रीन से बाहर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। लेट अस क्लियर दिस। So 6 में मेंशन है commercial electric motors do not use electromagnet to rotate the armature, effective large number of turns of conducting wires in a current carrying coil, permanent magnet to rotate the armature, a soft iron core which coil is bounded। तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर बी क्यों होगा, सॉरी सी। इसका आंसर सी होगा बिकॉज हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है हम उसी से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं। एज सच आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर्स सिलेबस में अभी तो नहीं है 2024-25 में, बट इसका आंसर सी है बिकॉज हमारे पास हमें मोटर्स को रोटेट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स चाहिए। और अगर आप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मोटर के अंदर लगाओगे तो एक तो वो हैवी होगा और दूसरा उसको बनाना कॉस्टली होता है, हैवी एंड कॉस्टली। बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट किसके बनते हैं, नॉर्मली आयरन के बनते हैं, तो आयरन हैवी होता है। तो दैट्स वाई ये ना यूज करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो किससे बनते हैं, नॉर्मली कॉपर कॉइल से बनते हैं। तो कॉपर आयरन के कंपैरेटिवली बहुत हल्का होता है, तो दैट्स वाई हमें कॉस्ट भी बचता है और हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके वेट भी बचा लेते हैं। तो विद दिस क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सो लेट मी शो द, जो इसमें डायग्राम बनाया गया है वो आपको डायग्राम शो करता हूँ पहले। ये टॉपिक आपके एज सच उसमें सिलेबस में नहीं है, बट जो बच्चे स्टेट गवर्नमेंट्स में आते हैं शायद उनके लिए ये टॉपिक यूजफुल हो, तो हम इसको जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस कि जो बच्चे स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड्स में आते हैं वहाँ पे अगर ये टॉपिक कवर किया गया है तो हम वहाँ पे कवर कर देते हैं, बट एज पर नाउ हम जब सीबीएसई का देखते हैं तो वहाँ पे इस टॉपिक कवर नहीं है। तो ये बोला गया है द की इज इंसर्टेड एंड लेटर रिमूव। पहले की को यहाँ पे जो ये की है पहले इसको इंसर्ट किया गया, मीन्स पहले यहाँ पे करंट फ्लो करने लगता है फिर उसको बाहर निकाल देना। तो दोनों केसेस में क्या होता है, तो इसकी थ्योरी हम आपको ऑलरेडी थोड़ा डिटेल में बता चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये कॉइल और ये कॉइल के बीच में लिंकिंग होती है जिसको मैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। कि जब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और वो फील्ड दूसरी वाली कॉइल से फ्लो करती है, तब दूसरी वाली कॉइल में करंट जनरेट होता है और वो करंट को हम गैल्वेनोमीटर की हेल्प से डिटेक्ट करते हैं। ये बेसिक्स है। अब जैसे ही आपने कॉइल के की को प्रेस किया, सर्किट क्लोज हुआ। अब सडनली एकदम से सर्किट के अंदर पूरा करंट नहीं आया, सर्किट के अंदर करंट है जो डेवलप होता है धीरे धीरे, मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ नैनो सेकेंड। वो धीरे नैनो सेकेंड्स में होता है, ना कि जो आपके नॉर्मल धीरे धीरे, तो आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। बट यस, करंट एकदम डेवलप नहीं होता, करंट को अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचने में टाइम लगता है। तो जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रहा है तो यहाँ पे जो फील्ड है उसकी वैल्यू बढ़ती है टाइम के साथ। तो जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है तो इस फील्ड के इस कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ, चेंज में भी वो बढ़ रही है। तो यहाँ पे करंट जनरेट होता रहेगा। यहाँ पे करंट जनरेट होने के लिए क्या कंडीशन है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये कंडीशन होती है। फिर क्या होता है, एक टाइम के बाद यहाँ पे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है। जब करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो ये बना रहा है वो कांस्टेंट हो जाएगी, यहाँ से कांस्टेंट फील्ड पास करेगी। अगर कांस्टेंट फील्ड पास करे तो कोई करंट जनरेट नहीं होगा, तो इसकी जो नीडल होती है वो वापस जीरो पे आ जाएगी और गैल्वेनोमीटर की नीडल बीच में, तो ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगी। बट जैसे ही आप की को वापस बंद करोगे तो सर्किट में करंट जैसे एकदम से मैक्सिमम नहीं गया था, तो ऐसे ही करंट एकदम से मिनिमम या जीरो नहीं जाता, करंट धीरे धीरे कम होता। और जब करंट कम होने लग गया
तो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होने लग गई, तो अब फिर से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज होने लग गई। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो फिर से करंट प्रोड्यूस होगा और फिर से डिफ्लेक्शन आएगी। अब जस्ट क्या होता है, अब डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आती है, जिस डायरेक्शन में पहले आई थी। अगर पहले ये लेफ्ट में गई थी तो आपकी बार ये राइट में जाएगी। तो दिस इज द इफेक्ट जो होता है जब आप इस की को ऑन ऑफ करते हो, तो जो डिफ्लेक्शन आएगी वो अपोजिट डायरेक्शंस में आती है। सो जो ऑप्शन डी है, देयर आर मोनोमेंट्री गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शंस, कि यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शंस होती हैं जो कि कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाती है, बिकॉज स्टार्टिंग में जब आपने प्रेस किया की को, सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, डिफ्लेक्शन आई, फिर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो गई, डिफ्लेक्शन जीरो हो गई, तो डाई आउट हो गई। और फिर उसके बाद क्या होता है, आपने की को निकाला, फिर से डिफ्लेक्शन आई बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो आंसर डी है, ऑप्शन डी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। नाउ Fleming's right hand rule is a simple rule to know the direction of induced current. Okay. Second part है the right hand thumb rule used to find the direction of magnetic field due to current carrying conductors. Third part C यहाँ पे है the difference between direct and alternating current is that direct current always flows in one direction, whereas alternating current reverse its direction periodically. And D, in India, AC changes direction after every 1/50 second. So, अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो जो पहला ऑप्शन है आपका, यहाँ पे फ्लेमिंग के हमारे पास 2 रूल होते हैं। पहला फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और दूसरा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, इससे आप क्या पता करते हो, फोर्स पता करते हो ऑन कंडक्टर। और जो राइट हैंड रूल है, इससे आप क्या पता करते हो, इंड्यूस करंट डायरेक्शन। जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो पहला ओके, पहला सही है, गलत नहीं। हमें यहाँ पे गलत नहीं, करेक्ट किया। तो उसके बाद है राइट हैंड थंब रूल। इसका यूज किस लिए किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करने के लिए, ये भी पता है हमें, राइट हैंड। नाउ डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, एसी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है और डीसी नहीं करती, ये भी ठीक है। नाउ इन इंडिया द changes direction, AC changes direction after every 1/50 second. तो यहाँ पे आंसर एग्जैक्टली 1/100 सेकेंड, बिकॉज AC 1 सेकेंड में अपनी डायरेक्शन 100 टाइम्स चेंज करती है। कैसे चेंज करती है, ऐसी 50 साइकिल्स लेती है हर सेकेंड, और एक साइकिल में डायरेक्शन 2 बार चेंज हो गई। तो इसकी वजह से यहाँ पे 1/100 आना चाहिए था, तो इसका ऑप्शन डी होगा। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीट। 9th की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं स्टार्ट। सो 9th में मेंशन है, a constant current flows in a horizontal wire in a plane of paper from east to west as shown in figure 13.5. The direction of the magnetic field in the point will be north to south. Okay. सो हमारे पास एक कंडक्टर है और उसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करता है हॉरिजॉन्टली, प्लेन ऑफ पेपर ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करता है। तो ये हमारे पास एक कंडक्टर है। नाउ ये हमने अगर ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, तो ये हमारी वेस्ट हो जाएगी, और ऊपर होगी नॉर्थ, नीचे होगी साउथ। अब करंट ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करता है, तो ये ईस्ट टू वेस्ट जाएगा ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है आपको, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हो। तो आपका जो थंब है वो वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि स्क्रीन के लेफ्ट में फ्लोट करना चाहिए। फिर आप अपनी फिंगर्स को जब रोटेट करोगे तो आप ये पाओगे कि आपकी फिंगर्स ऊपर से नीचे की तरफ रोटेट हो रही है। ऊपर से स्क्रीन के अंदर वाली डायरेक्शन में जा रही है और नीचे से स्क्रीन की बाहर वाली डायरेक्शन में आ रही है। मीन्स आपकी स्क्रीन ऐसे जा रही है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से वायर के पीछे जाती है और नीचे से वायर के
बैक साइड से आगे की तरफ आती है। तो अब ये बताना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट विल बी द नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्टली अबव द वायर, डायरेक्टली बिलो द वायर। तो इनमें से जब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जा रही है, यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में नॉर्थ टू साउथ मीन्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, तो वो वायर के ऊपर से जा रही है या वायर के नीचे से जा रही है, ये वायर के बैक साइड से जा रही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ फील्ड वायर के बैक साइड से जाएगी, तो डायरेक्टली बिलो द वायर, तो आंसर होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The strength of magnetic field inside a long current carrying straight solenoid is more at the end, minimum at the middle, same at all point, found to increase from one end to another. So in this case देखिए यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास क्या है, लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनोइड, और इनसाइड पूछा गया उसके अंदर। तो इनसाइड में हमने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास एक लॉन्ग सोलेनोइड हो ऐसे, तो उसके इनसाइड जितने भी पॉइंट हैं सबके अंदर सेम मैग्नेटिक फील्ड होती है, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, सो सेम एट ऑल पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 AC टू DC कन्वर्टर्स के बारे में है, ये आपके पास नहीं है तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, जो हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। The most important safety method used for protecting home appliances from short circuiting or overloading is, हम अपने घरों में शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोड से कैसे बच सकते हैं। तो इसमें आप क्या यूज करोगे, यूज ऑफ फ्यूजेस। अगर आप घर में फ्यूज यूज करते हो तो आप शॉर्ट सर्किट के केस में या ओवरलोड के केस में अपने अप्लायंस को बचा सकते हो। वैसे इसमें अर्थ भी आता, अर्थिंग भी आना है, बट अगर यहाँ पे दो ऑप्शन पूछे जाते तो फिर आप अर्थिंग को लेते। बट सबसे ज्यादा यूजफुल क्या है, आप फ्यूज यूज करो, और उसके साथ एडिशनल सेफ्टी क्या होगा कि आप अर्थिंग यूज करो। अगर आपको एक ही ऑप्शन चूज करना हो तो आप यूज ऑफ फ्यूजेस करोगे। सो विद दिस हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। इसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर दिए हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इससे आगे बढ़ेंगे, और जो इस सीरीज में ये जो एक्सरसाइज है इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। एंड एज यूजुअल, अगर आपको ये इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है, कोई इंफॉर्मेशन मिलती है या अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है, then please consider like, share and subscribe, because more you share these videos, more you subscribe to our channel, more you like the video, more YouTube recommend it to other people. So when you share, when you like, when you subscribe, you are also helping other people to get know that these type of videos exist there on the YouTube, and they can also get meaningful information while watching these videos. So I will urge you to like these videos, share with your friends, your classmates, and subscribe to our channel. With this, we will meet in next video with more questions. Keep on studying, and thanks for watching.